An object at rest stays at rest, and an object in motion stays in motion until and unless an external force is applied to it. This is Newton's first law of motion, and it heavily correlates with the real life. Today, I'm going to illustrate using basic physics concepts how they are correlated with the real life and how we can use them to make our lives better. Your biggest enemy is inertia. ऐसा कितनी बार होता है कि तुम अपनी बुक खोलते हो पढ़ने के लिए और 5 मिनट में you just completely out of it. How many times has the back been back for you to just lay down on your bed the next moment? Correlating to physics, you don't need motivation, you need a tiny force. 3 actionable steps I can give you to help you get out of it. सबसे पहला है the 5-minute rule. But the 5-minute rule says that कि जब भी तुमको कोई काम करना है और तुमको फ्रिक्शन आ रहा हो काम करने में, तुम्हारा मन नहीं कर रहा हो काम करने का, just tell your brain you're going to do it for 5 minutes. You're going to open your laptop, you're going to open YouTube, you're going to open your notebook, and then you're going to study only for 5 minutes. मेरे को जिम जाना है और मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रही है जाने, तो मैं क्या करूँगा, मैं जूते पहनूंगा, मैं कपड़े पहनूंगा, मैं ब्रेन को बोलूँगा मैं बस जूते पहन रहा हूँ, कपड़े पहन रहा हूँ, एंड देन आई टेल माय ब्रेन यार अब मैंने जूते और कपड़े पहन ही लिए हैं, तो जिम चले जाता हूँ, 5-10 मिनट कुछ करके आ जाऊँगा. एंड वंस यू हैव ब्रोकन दिस इनिशियल बैरियर, तुम्हें पता नहीं लगेगा तुमने 1 घंटे का वर्कआउट कब हिट कर दिया. So this is a really powerful method that you can apply. The second method is the 3-to-1 rule. अब मेरे को नहीं पता ये कोई एक्चुअल मेथड है कि नहीं, but a lot of times this is what I do. Something जब भी मेरे को कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा होता, मैं अपने आप से मन में काउंट डाउन करता हूँ 3, 2, 1. I just start doing the thing anyways. इससे एक इनिशियल बैरियर ब्रेक हो जाता है and I am able to do the stuff for a longer time, for longer periods of time. And even if I'm not, at least 10-15 मिनट करके you're building a habit. Next one is reducing friction in any way that you can. अगर मान लो तुमको पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है, you keep your study table ready. Your notebook's open, there's a pen right there at the table. Your laptop just needs to open and it'll open the YouTube video right away that you're studying from. वाटर बॉटल तुमने साथ में रखी है अपनी पानी की. इससे क्या होगा कि तुम बहाने नहीं बनाओगे बाद में कि यार अभी तो वाटर बॉटल भरनी है मेरे को, अभी तो पेन नहीं मिल रहा मेरे को. एंड ब्रेन को तुम अपने बहाने कम दोगे, सो यू कैन डिराइव बेटर आउटपुट्स फ्रॉम इट. इवन तो अगर तुमने स्टार्ट छोटा लिया है, अगर तुम्हारा फ्लो बन गया, यू आर गोइंग टू बी एबल टू डू द वर्क प्रॉपर्ली. इवन तो अगर तुम्हारे स्टार्ट्स छोटे हैं, इफ यू स्टार्टेड, फ्लो मेंटेन करना इज एक्चुअली फेयरली इजी. जिम में सबसे पहले 2 सेट ही सबसे हार्ड लगता है बिकॉज यू आर नॉट विलिंग टू डू दैट. राइटिंग में सबसे पहली 3 लाइन्स, एंड इवन रिकॉर्डिंग में, जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे लिए सबसे मुश्किल स्टेप क्या था, टू pick up the tripod, mount the phone on it, and press recording. Once I pressed recording, I can keep on talking, and वो flow बन गया तो फिर you're not really worried about it. What I can recommend you to do is momentum stack. What do I mean by that? What you need to do is first of all do the smallest visible task. जो सबसे छोटा टास्क तुम्हें दिख रहा है अपने सामने. अगर तुम कोई बुक रीड कर रहे हो, you're not good at reading, just take the book and read one line. One line. That's it. अब तुम बोलोगे यार 1 लाइन से मेरा क्या आएगा. बट द थिंग इज, अगर तुम आज 1 लाइन पढ़ो, कल तुम 2 लाइन्स पढ़ो, तो उसके अगले दिन 3 लाइन्स पढ़ो, तो धीरे धीरे करते एट द एंड ऑफ 365 days you're going to be reading 365 lines. It's insane how powerful this is. एक और चीज़ जो तुम कर सकते हो, जैसे कोई भी टास्क है तुम्हारी लाइफ में क्योंकि तुमको बोरिंग लगता है, मान लो कोई कॉलेज की असाइनमेंट है या फिर कुछ भी है, तुमको कोई और प्रोजेक्ट पे काम करना है और तुमको वो बोरिंग लग रहा है, stack that with something that you find interesting. तो तुम कॉलेज का प्रोजेक्ट करते करते कान में अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट लगा लो और टेक अ लिटिल बिट ऑफ योर फेवरेट जंक फूड, नॉट अ लॉट, अ लिटिल बिट, और साथ में थोड़ा थोड़ा सा खा लो. और जस्ट गोइंग टू सिग्नल योर ब्रेन इज कि चलो मेरे को यहाँ से थोड़ा सा डोपामिन मिल रहा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन अबाउट डूइंग द बोरिंग टास्क, एंड यू माइट बी एबल टू डू इट मोर एफिशिएंटली. जब तुम रात में सो रहे हो, कुछ सेकंड्स के लिए अपने पूरे दिन में जितने भी तुमने विंस एक्यूमुलेट किए हैं उसके बारे में सोचो. Even if you've read that one line, even if you open the project, just think of those as wins. This will give your brain fuel for the next day and you're going to be much better next day. अगर तुमने 11th में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, अगर तुम उसकी स्टार्ट वाली प्रॉब्लम्स करते थे, all of them used to be without friction. But जैसे जैसे तुम और चीज़ें सीखते थे और चीज़ें डेवलप करते थे अपनी स्किल्स, the problems used to be with friction.
And the problems with friction were real world scenario because in real world there's friction everywhere. Similarly, life में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं which act as a friction between you and the work that you have to do. Now to all the people watching this, I need you to grab a pen and paper right now. Pause the video and grab the pen and paper. I hope you've done that. Now, on that paper, I want you to write something called a friction map. Divide the page into two columns, external factors and internal factors. वहाँ पे तुम क्या लिखोगे? जो भी चीज़ें तुमको अपना वो काम करने से रोक रही हैं, which are acting as a friction between you and you doing the work. Write down. What are the external factors? What are the internal factors? Something like this. Something like this. तुम्हारे एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे फ़ोन चलाना, नॉइजी इन्वायरमेंट, तुम्हारा रूममेट तुमको परेशान करता है, तुम्हारे पेरेंट्स नेगेटिव है, तुमको कुछ काम देते रहते हैं. These can all be the external factors. Internal factors can be you haven't slept properly, you're facing some health issues, you're overthinking a lot. These can all be the internal factors. तो फिर इस पेज पे अभी के अभी वो सारे फैक्टर्स लिखो and try to get ahead of them, try to solve them to derive the most output for your work. What this will help you do is कि तुम पहले friction को remove करोगे before adding the effort. और जितना friction कम है उतना forces कम लगाने पड़ेंगे तुमको to overcome to actually do your work. मान लो अगर तुम्हारी सबसे बड़ी distraction phone है, just keep your phone in a drawer, lock the drawer and do your work while your phone just lies there. वो कर सकते हो तुम. अगर तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्लीप है, lack of sleep, try to fix your sleep cycle, try to get as much sleep as possible. अगर तुम्हारी कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, डॉक्टर के पास जाओ, start eating a healthier diet, start going to the gym, start just being more active. That will help you with your health. बस ऐसे ही तुम फैक्टर्स पता करो कि तुमको कौन कौन से फैक्टर्स रोक रहे हैं. This will genuinely help you a lot. इस काम में तुमको फ्रिक्शन मैप हेल्प करेगा कि तुमको पता लग जाएगी तुम्हारे कौन से फैक्टर्स तुमको रोक रहे हैं and you will be able to overcome them properly. तुम्हारा रियल लाइफ में काम करना is like velocity, not speed. Velocity has both speed and direction. Speed doesn't have any direction. Similarly, life में जो तुमको efforts डालने हैं, they have to be targeted towards a specific direction. तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम बस efforts डाले जा रहे हो और तुमको अपनी direction का नहीं पता. That's just not going to make sense. हर हफ्ते तुम 5 मिनट निकालो, अपने साथ बैठो, अपने आप से पूछो कि जितने भी मैंने एफर्ट्स डाले इस हफ्ते, क्या वो सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं मेरे को, क्या आज का स्मॉल स्टेप जो मेरा मेन गोल है उससे अलाइन है. ये करने से तुमको पता लगता रहेगा कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, एंड योर एफर्ट्स वोंट बी वेस्टेड. इम्पल्सेस. फिजिक्स में इम्पल्सेस आर द शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ फोर्सेस दैट चेंज मोमेंटम. सिमिलरली लाइफ में जो तुम कोई टास्क करते हो फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम बट विद फुल एनर्जी एंड फोकस, दे कैन एक्ट एज इम्पल्सेस एंड कैन चेंज योर मोमेंटम and the direction towards which you're going. हमेशा जब भी तुम काम कर रहे हो एक टाइम थोड़ा सा विजिबल रखो अपने सामने so that you have a sense of urgency. अपने माइंड में एक डेडलाइन बना के चलो कि मेरे को 8:30 बजे तक आज ही काम खत्म करना है कुछ भी करके. अगर तुम्हारे माइंड में कोई डेडलाइन नहीं होती तो तुम्हारा माइंड उसको प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है काम को. Once you have a deadline, your brain becomes more focused और वो कोशिश करता है कि उस टाइम के अंदर वो काम करते हैं एंड यू विल बी मोर प्रोडक्टिव दैट वे. अगर तुम हर दिन सेम टाइम पे सेम चीज़ करते हो, योर ब्रेन जस्ट ऑटोमेटिकली अज्यूम्स दैट टू बी यू और तुमको फिर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हर दिन वो काम करने के लिए. जैसे तुमने एक रूटीन सेट कर ली कि तुम सुबह 7 बजे उठ के जिम जाओगे, फ्रॉम 9 to 4 आई एम गोइंग टू बी इन कॉलेज. कॉलेज से आके मैं मान लो खेलने जाऊँगा थोड़ा सा, मैं 1 घंटा 6 से 7 पक्का पढ़ूंगा हमेशा. So setting a routine like this is going to be really impactful for you, really beneficial for you. और जब तुम्हारी बॉडी को लगने लग जाएगी तुम हर दिन सेम चीज़ सेम टाइम पे कर रहे हो, अराउंड सेम टाइम पे कर रहे हो, तो फिर your body stops opposing you, friction reduce हो जाता है बॉडी का and you become bit more productive, bit more efficient every working day. फिजिक्स का एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी इन मोस्ट केसेस स्टेज कंजर्व. वैसे ही अगर तुमने किसी दिन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मार लिए हैं, यू नीड टू टेक प्रॉपर रेस्ट. अब रेस्ट का मतलब ये नहीं कि तुम जाके यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, ऑब्वियसली कर लो बीच बीच में खुल के, बट बाय रेस्ट आई मीन योर बॉडी नीड्स प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट, योर माइंड नीड्स रिफ्रेशमेंट्स. अगर आप रेस्ट को इग्नोर करोगे इमोशन कोलैप्स हो जाएगा. सो स्लीप, हाइड्रेशन, डिलोड डेज,
They aren't a luxury, they're a part of the system. These things will actually help you improve your work, पर तुमको डेली मोमेंटम जरूर रखना है। जैसे कि अगर तुम रीडिंग कर रहे हो तो अगर मैंने किसी दिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैं कम से कम एक सेंटेंस रोज पढ़ूंगा। मैं जिम रोज जा रहा हूँ पर एक दिन किसी दिन नहीं गया और मेरे को रेस्ट करनी है तो मैं 10 पुशअप्स पक्का मारूंगा। अगर मेरे को पढ़ाई करनी है पर मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं है, मैं एटलीस्ट बस एक छोटा सा पेज पढ़ लूंगा कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट का। डेली मिनिमम तुम्हारा मोमेंटम ब्रेक नहीं होने देते और अगले दिन जब तुम जेन्युइन फोकस वर्क करोगे उस फील्ड में तुमको फ्रिक्शन फील नहीं आएगा। अब जितनी भी मैंने फिजिक्स एनालिसिस ड्रॉ करी है इस वीडियो में, आई एम गोइंग टू रिकैप इट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, inertia. Inertia is the opposing force that your body is going to produce whenever you start doing something. To overcome that, तुमको क्या करना है? तुमको बस स्टार्ट करना है, छोटा सा स्टार्ट, just one page, just going to the gym. Momentum can be correlated to the flow of work that you can attain. मोमेंटम अगर तुमने अचीव कर लिया, यू गोइंग टू जस्ट गो फॉरवर्ड इन योर वर्क। ऑल द अपोजिंग फोर्सेस जितनी तुमको रोकती हैं वो काम करने से, वो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के लिए मैंने तुमको सजेस्ट करा था एक फ्रिक्शन मैप बनाने का, जिसमें तुम लिखो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम डूइंग द वर्क एंड उस पर काम करो। फिर मैंने तुमको बताया था कि एफर्ट्स एक वेक्टर है, स्केलर नहीं। तो तुमको जितने भी एफर्ट्स डालने हैं, दे हैव टू बी इन अ गुड पर्टिकुलर डायरेक्शन। इफ दैट डायरेक्शनलेस, देयर यूजलेस। फिर मैंने डिस्कस किया इम्पल्सेस के बारे में। इम्पल्सेस आर द शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ फोर्सेस दैट एक्ट टू चेंज मोमेंटम very quickly. These can be things like very focused blocks of work that you can do to help you achieve better understanding of your work. At last, I discussed the conservation of energy. कैसे तुम purposely rest करके अपनी एनर्जी को और बढ़ा सकते हो to help you get more out of the work you're doing. Motivation mood नहीं, mechanics है। जब सिस्टम ठीक होता है, मोटिवेशन भी अपने आप फ्लो करती है। अगर तुमको इस वीडियो में मेरी एडवाइस पसंद आई एंड यू वांट मोर ऑफ इट, आई एम करंटली बिल्डिंग अ जर्नल दैट्स गोइंग टू कंटेन even more prompts, better prompts to help you reflect on your days. It's in pre-sale right now. You can buy it from the top link in the description.